नमस्ते। आशा है आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे और अब पूरी तरह से आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आप अपने काम में लगे हुए होंगे। पिछला एक महीना थोड़ा सा चिंता का विषय था, लेकिन अब लगता है मुझे जिस तरह से हम लोगों ने डिसिप्लिन वे में काम किया है, जिस तरह से हम लोगों ने डिसिप्लिन वे में कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया है, मुझे लगता है कि हम सभी इससे निजात पा चुके हैं। आज सोच रहा हूं कि मैं कुछ आपको अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं और उससे जो निचोड़, जो लर्निंग्स है उसको शेयर करूं, जो प्रैक्टिकल चीज है। तो मैं शुरू करता हूं 1988 जब कन्फर्मेशन के बाद मेरी पदस्थापना झारखंड के सबसे डिफिकल्ट सेंटर पे महुआडार पे रूरल कंप्लीट करने के लिए की गई थी। इन अ सुपर न्यूमेरिक कैपेसिटी आई वाज पोस्टेड टू अ ब्रांच कॉल्ड महुआडार ब्रांच व्हिच वाज स्केल 2 ब्रांच एट दैट टाइम। 1 फरवरी को मैंने ज्वाइन किया 1988 में और 6 मार्च वाज द डेट व्हेन माय मैरिज वाज फिक्स्ड। सो I thought कि I will go join, learn something, and then from 2nd March I had applied for leave, which was already granted. That branch was scale 2 branch and there were 2 officers and 4-5 clerks were there and 1 or 2 subordinates. 1 guard was also there. So branch at that time the categorization number was 1.5 crore of business, average business for last 2 years for qualifying to be in scale 2 category. The branch manager, Mr. Kyoliar, was very happy to receive me because he was not able to get leave as he was a key holder. Although there was another officer available in the branch, but since that officer was earlier acted in that branch as a cash officer and handled the key of a cash wing, he was not allowed to take charge of accountant as one person cannot handle both the keys. That is the guidelines. So when I reached there, he was very happy. Now he will be handing over the key and going on leave. He was not able to go on leave even. The regional office was located in, zonal office was in Ranchi and regional office, all regional offices were at the zonal office centers only. And the distance of Mahuadar from Ranchi was almost 156 kilometers. So communication, no WhatsApp, no mobile phone, trunk call or telephone call if you get connected. You are able to get connected. No bus communication, the regular bus communication either from Palamu headquarters of Daltonganj or Ranchi zonal office center. There were no local bus even plying. Somehow I reached Mahuadar branch on 1st February. I joined there. And as usual, after 10 days, Mr. Kyoliar proceeded on leave with a promise that he will come back within a week. So I had to handle the key. I was handling the key. I joined as a bank as a probationary officer, and probationary officers are never exposed to cash wing during the entire probation period. So when you are handling the key, you are handling the key as an accountant because you are or branch head. There was no post of accountant at that branch. So you were the branch head, although senior person was there, but he can't be a branch head. So you were the branch head, you were the accountant, and you were handling the key. So you were learning from the Mr. Besra, who was the second officer. So उनसे मैं सीख रहा था सारी बातें. After 1 week or so, मेरे चार्ज लेने के बाद जब मिस्टर क्योलियर के आने की बारी आई लौटने की, तो उनका कहीं पता नहीं था. 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीते. अब मेरा टेंशन ये कि 2 मार्च से मुझे छुट्टी पे जाना है. 27 या 28 तारीख के आसपास में, इट वॉज मोस्ट प्रोबेबली 6 मार्च वॉज संडे, सो वही 28
फरवरी और 27 फरवरी जो भी रहा होगा डेट है, उसके आसपास में सैटरडे संडे था और सैटरडे हाफ डे हुआ करता था उस समय में। उस समय में सेकेंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ का कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं रात में 8:30 बजे खाना वाना खा के ऐसे ही लेट सोने की मुद्रा ही में था कि मेरे दरवाजे पे नॉक हुआ। मैंने खोला तो देखा मिस्टर बेसरा जो सेकंड ऑफिसर थे ब्रांच में, एंड मिस्टर हेम्ब्रम हु वाज होल्डिंग चार्ज ऑफ द कैश एंड वन मोर स्टाफ वेयर देयर स्टैंडिंग एट द गेट एंड काफी परेशान। मैंने कहा क्या हो गया? एंड I had just less than a month's experience at that branch. So they said कि we have lost the key. Mr. Hembram has lost his cash key. मैंने कहा कब? शाम में तो क्लोज किया साथ साथ। क्या नहीं, वो होटल में खाना खाने गए थे और उसके बाद से उनको चाबी मिल रही है, सब जगह ये खोज गया है, so we have lost the key. मैंने कहा what is the guidelines? तो से कि गाइडलाइंस FIR तो करना होगा। मैंने कहा आर यू श्योर? मैंने कहा यस। मैंने कहा लेकिन ब्रांच चलेगा कैसे? व्हाट इज द गाइडलाइंस? नोबडी वाज अवेयर। अगर एक ज्वाइंट कस्टोडियन की चाबी खो जाती है तो क्या गाइडलाइंस होगा? सो वी अब रांची आप किसको फोन लगाओ, सारे लोग घर पे होंगे, कल संडे है, परसों ब्रांच खोलना है और परसों चूंकि ब्रांच खुलेगा, मार्केट का डेज है तो काफी रश होगा। तो वी ऑल आई जस्ट गॉट अप फ्रॉम द बेड, आई रेडी हुआ मैं, एंड हम लोग निकले और कहे चलिए ब्रांच। जनरेटर ऑन कराया और ब्रांच में बैठे, एंड मैंने कोडिफाइड इंस्ट्रक्शन निकाला। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि अगर की लॉस होगा तो क्या होगा, कैसे होगा। मैं पूरा छान मारा कैश डिपार्टमेंट प्रोसीजर, मुझे कहीं स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं मिला अगर चाबी खो जाए तो क्या करना है। अब ये बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति थी। समवेयर आई गॉट वन इंस्ट्रक्शन कि अगर चाबी खो जाती है और फिर मिल जाए तो आप उस चाबी को यूज नहीं कर सकते हैं, और अगर चाबी खो जाए तो फिर आपको बेसिकली खोल ही नहीं पाइएगा आप उसको। तो अगर आप ब्रेक ओपन कराते हैं तो आपको ब्रेक ओपन कराना है in front of गवर्नमेंट सर्वेंट्स, गजेटेड ऑफिसर, एंड काउंटिंग होगी, टैली किया जाएगा और एवरी डे फिर उसको सील किया जाएगा। और नेक्स्ट डे अगर आप खोल रहे हैं उनके सामने में खोलना है, फिर निकालना है, फिर यूज करना है, फिर सील करना है। सो दिस वॉज द प्रोसेस दैट आई गॉट टू नो फ्रॉम कोडिफाइड इंस्ट्रक्शन। हम लोगों ने एक चिट्ठी तैयार की जोनल ऑफिस के लिए, और अब वहां से भेजे कैसे, बस तो चलती नहीं। तो एक हम लोगों ने, हमारे एक यूनिट था, उसके पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी, हम लोगों ने उनके बेटे से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे स्टाफ को लेके बाइक से सुबह सुबह निकल जाओ जोनल ऑफिस, 5-6 घंटे में पहुंच जाओगे, शाम तक इंस्ट्रक्शन लेके आ जाना, दिन भर का काम तो हम लोग किसी तरह चला लेंगे मंडे को। फिर हमने बेसरा साहब से बात किया और हेम्ब्रम से बात किया कि ये बताओ कि एक दिन में मंडे को जनरली तुम कितना एक्सपेक्ट करते हो कैश विड्रॉल, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि जो हमारा कैश सेफ है उसको हम ब्रेक ओपन करें। की रिप्लेसमेंट होगा, उसमें 3-4 दिन टाइम लगेंगे। तो उसने कहा 70,000 to 80,000 का विड्रॉल होगा और हमारा रिसीट भी होता है। संडे था नेक्स्ट डे, तो हम लोगों ने सारे दुकानदार जो लोकल थे उनसे पूछा कि आप मंडे को कितना कैश जमा कर रहे हो। तो सब मिला के लगभग 1 लाख 1.25 लाख के करीब का कैश का इंतजाम हो गया कि मॉर्निंग में उनकी कैश रिसीव हो जाएगी। हम लोगों ने यही कहा कि हम आपको रिसीट लास्ट में देंगे, नोट करते चलेंगे, आप जितना भी जमा करोगे कच्चा रिसीट दे देंगे, लेकिन पक्का रिसीट आपको तब मिलेगा, क्योंकि पक्का रिसीट हो सकता है हम आपको कुछ कैश विड्रॉ करें, वी मे नॉट बी एबल टू पुट दैट कैश इन सेफ। थानेदार से बात किया, कहा कि FIR के लिए एक जगह आप खाली छोड़ दो, हम जोनल ऑफिस के इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद, RBO के इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद फाइल करेंगे FIR, आप जगह छोड़ के रखना। क्योंकि लोकल छोटी जगहों में आपके संबंध बहुत अच्छे होते हैं तो लोग बात मान भी जाते हैं।
सुबह सुबह बाइक पे चिट्ठी लिख के भेजा, वो बंदा चला गया। 4-5 घंटे में जब तक वो पहुंचता रांची और वहां से कोई फोन आता, तब तक होटल के मालिक आए सुबह सुबह 10 साढ़े 10 बजे, और उन्होंने वो चाबी कैश ऑफिसर की हमें थमा दी। चाबी उन्होंने पाई थी, होटल ही में छूटी हुई थी, और वो घर लेके चले गए थे। अब दूसरी समस्या ये आई कि चाबी तो मिल गई, लेकिन दिस की हैज ऑलमोस्ट 14 आवर्स दिस वाज विद अ पर्सन हु इज नॉट ऑथराइज्ड टू कीप द कीज। क्या आप उस की को यूज कर सकते हो? अब जब तक वो आदमी आएगा, दोबारा हम भेजेंगे जोनल ऑफिस, और फोन लग नहीं रहा है मंडे को, तो आप करोगे क्या? तो हमने बेसिकली एक दूसरे आदमी को दूसरे बाइक से भेजा, जोनल ऑफिस की चिट्ठी लिख के कि ये मिल गया, आप बताइए क्या करें। और उसके बाद मार्केट से पैसे कलेक्ट किए, जितने भी किए थे वो सारे विड्रॉल जो हो गए थे उसको मैच करा दिया। जितने डिपॉजिट हमारे आए थे और जितने विड्रॉल की जरूरत थी उतने ही डिपॉजिट हमने लिए, और बाकी पैसे जो शॉपकीपर्स थे जिन्होंने जमा करना था उनको जमा कर दिया कि आप 2-3 दिन के बाद जमा करना। और बेसिकली सील किया हुआ था सेफ, वो हमने बीडीओ साहब को बुला के उनके सामने में सील करा दिया था। ब्रेक ओपन नहीं किया था, कहा था जब ओपन होगा उस दिन हम लोग काउंटिंग करेंगे और जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे जब की चेंज होगा। हमें जोनल ऑफिस से ये गाइडलाइंस आ गया कि की चेंज करने का हम लोगों ने गोदरेज कंपनी को ऑर्डर दे दिया है, लेकिन आप तब तक के लिए इस की को जो मिला है आपको यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उस की को यूज करने के बाद एवरीडे सुबह और शाम सेफ को सील करते रहें इन फ्रंट ऑफ गजेटेड ऑफिसर एंड उनसे साइन कराते रहे। तो हम लोगों ने बीडीओ साहब को रिक्वेस्ट किया कि ऐसा आदेश आ गया है तो यूज तो कर रहे हैं, ब्रेक ओपन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आके साइन करना पड़ेगा। और वो बेचारे बड़े शरीफ आदमी थे मिस्टर टुप्पो, वो एवरीडे शाम में आते थे, सुबह आते थे, उनके सामने में खुलता था सेफ। 2 दिन ही खुलना पड़ा, तीसरे चौथे दिन तो गोदरेज वालों ने आके रिप्लेस कर दिया। और सारे हिसाब किताब मिले हुए थे, कहीं कोई इशू नहीं था। 2 दिन के बाद चाबी चेंज हो गई। जैसे ही चाबी चेंज हुई, मैंने मिस्टर बेसरा को कहा कि यू नाउ टेक ओवर। मिस्टर क्योलियर तो लौट के आया ही नहीं, तो मैंने मिस्टर बेसरा को कहा कि आप टेक ओवर कर लीजिए मुझसे की। उन्होंने कहा मैं कैसे करूं, मैं तो यहाँ पे कैश विंग में काम किया हुआ हूं। मैंने कहा कि सर आपने जिस चाबी को हैंडल किया था ना एज कैशियर, वो भी बदल गई है, लॉक बदल गया है। नाउ यू आर ऑफिसर हु कैन हैंडल दिस एंड यू आर सीनियर टू मी। वो मान गए और हम लोगों ने ऑफिस ऑर्डर पूरा करके उनको हैंड ओवर किया और जोनल ऑफिस को इंटीमेट कर दिया कि आई एम प्रोसीडिंग ऑन लीव एज सैंक्शन्ड बाय यू, वी हैव चेंज दिस एंड वी हैव इशूड दिस ऑफिस ऑर्डर एंड इसकी कॉपी आपको भेज रहे हैं, काइंडली कंफर्म आवर एक्शन। जब मैं शादी वादी के बाद लौट के आया 1 सप्ताह 10 दिन के बाद, तो मुझे कंफर्मेशन जोनल ऑफिस से मेरे एक्शन का आ गया था। और उसके बाद मैं जब तक उस ब्रांच में अपना रूरल कंप्लीट करता रहा, मुझे चाबी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आइदर मिस्टर क्योलियर भी आ गए थे वापस, मिस्टर क्योलियर उपस्थित रहते थे या फिर मिस्टर बेसरा उपस्थित रहते थे। मैं आराम से बिना की संभाले पूरा मार्केटिंग करता था, बिजनेस करता था, काम करता था। दूसरे ब्रांच गया मैं, दूसरी जगह डेपुटेशन पे मुझे भेजा जाता था 2-2 महीने के लिए, वहां पे मैं की हैंडल करता था। लेकिन इस ब्रांच का की दोबारा हैंडल करना मेरे नसीब में नहीं रहा, बिकॉज द की वॉज चेंज्ड। अब अगर आप लर्निंग की बात करें कि इसमें हम आपकी क्या लर्निंग्स हुई, पहली चीज कि जो भी लोग कोई भी काम संभालते हैं ना, अपने एरिया का कोडिफाइड इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ लीजिए। वेदर यू आर हैंडलिंग कीज, वेदर यू आर हैंडलिंग डॉक्यूमेंट्स, वेदर यू आर हैंडलिंग क्रेडिट एरिया, वेदर यू आर हैंडलिंग अकाउंट्स विंग, और आजकल डीबीएम का रोल है। आप अपने रोल के बारे में क्लियर रहिए और उसको कैसे डिस्चार्ज करना है, उसके गाइडलाइंस
रफली आपको पता होने चाहिए। अब आपके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हो गई है कि आप सारे व्हाट्सएप पे उपलब्ध हैं, अपने आरएम के साथ कनेक्टेड हैं, अपने जोनल ऑफिस में चीफ मैनेजर्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगा कम्युनिकेशन का जो हमें उस समय में हुआ करता था। लेकिन फिर भी अपने आप को इक्विप रखना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोकल कनेक्शंस को डेवलप करके रखना। आपने देखा होगा हम लोगों ने शॉपकीपर्स से पैसे कलेक्ट किए थे डिपॉजिट के, उनको रिसीट इशू किए, उतने ही के रिसीट इशू किए जितने का हमने विड्रॉल उस दिन किया। तो बेसिकली रिकॉन्सिलिएशन के बाद जो भी सरप्लस कैश हमारे पास रह गए थे ना, उसे हम लोगों ने सारे शॉपकीपर्स को, क्योंकि उनके सारे अकाउंटेड फॉर थे, वापस कर दिए और कहा कि ये जो सरप्लस अमाउंट है ये आप जब हमारा सेफ खुल जाएगा प्रॉपरली तब आप जमा कीजिएगा। अगर हमें कल दोबारा जरूरत पड़ी आपके सहयोग की तो हम आपसे दोबारा सहयोग लेंगे। और इस तरह से एक दो दिन हम लोगों ने मार्केट से कैश डायरेक्टली उठाया और जितने कैश उठाते थे उतने ही कैश उठाते थे जितना कि हमें विड्रॉल करना पड़ता था, विड्रॉल देना पड़ता था लोगों को, और उसको मैच करा के बाकी सरप्लस कैश हम वापस कर देते थे और जो डिपॉजिट हुआ बैंक में उनके अकाउंट में उसका हम प्रॉपर रिसीट कस्टमर्स को इशू कर देते थे। जो डिपॉजिट वाउचर होते हैं हमारे जहाँ पे, जो कि रिकॉर्डेड होता है, डे बुक वगैरह में सारी एंट्री प्रॉपरली हो जाती थी। इस तरह से वी मैनेज फॉर 2 days एंड उसके बाद फिर की तो चेंज हो ही गया था। ये तभी संभव होता है जब आपका कस्टमर आप पर ट्रस्ट करता है, आपका कस्टमर आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है और आपका कस्टमर आपको बेसिकली सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और वो तभी होगा जब आप कस्टमर को सपोर्ट करते हैं, कस्टमर सर्विस अच्छी देते हैं और उनके साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं। आपको वो अच्छे से जानते हैं, आप उनको अच्छे से जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन लोग हैं जो कैश डिपॉजिट करते हैं रेगुलर बेसिस पे और कौन लोग हैं जिनसे हम कैश लेके, अगर हमको आउटसाइड सेफ कस्टमर्स को हेल्प करना है, कस्टमर्स को सर्व करना है, तो कैसे कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आते हैं ना कि आप ब्रांच में हैं और सडनली आपका कैश शॉर्टेज हो गया। आपके पास उतने कैश नहीं है जितना डिमांड कस्टमर ने कर रखा है। कैश शॉर्टेज का मतलब हुआ कि आपको जितना डिमांड कस्टमर ने रेज कर रखा है उतने आपके पास कैश उपलब्ध नहीं है। तो आप जब तक इंडेंट करेंगे और सीएससी आपको सप्लाई करेगा, आपके कस्टमर्स खड़े हैं। तो अगर कोई डिपॉजिटर है, आप फोन कर देते हैं कि अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो काइंडली कम एंड डिपॉजिट कैश विद अस, मेरे ख्याल से बहुत आसान हो जाता है। थानेदार से रिलेशनशिप बहुत अच्छा से रखना है आपको, सो दैट कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई भी सपोर्ट करना हो, कोई भी एफआईआर वगैरह करना हो, वो आप उनके साथ रिलेशनशिप है, वो आपके लिए हर तरह से उपलब्ध है। जब भी आपको सपोर्ट करना है, हमारे साथ तो ये भी होता था कि हम जब लोग रेमिटेंस लाने जाते थे तो थाने ही के सिपाही हमारे साथ जाते थे, क्योंकि गार्ड तो एक ही रहता था और वो एरिया थोड़ा धीरे धीरे नक्सल इन्फेक्टेड होता जा रहा था। तो 4 पुलिस के गार्ड हमारे साथ हरदम जाते थे। तो सप्ताह में 2 बार रेमिटेंस लाना पड़ता था डाल्टनगंज से, जो कि 150 किलोमीटर दूर था। तो जाहिर है कि आपके रिलेशनशिप पुलिस और थाने से बहुत अच्छे हो भी जाते हैं एंड दे वर ऑल सपोर्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंस ऑफ माइंड। इफ यू आर हैविंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इफ यू आर अप्लाइंग दैट, गाइडलाइंस आर नथिंग बट कॉमन सेट ऑफ रूल्स which your common sense says yes, this has to be done. कोडिफाइड इंस्ट्रक्शन में बहुत सारे गाइडलाइंस नहीं थे, न तो एफआईआर के बारे में था, न ही ये था कि अगर आपको चाबी पर सिचुएशनल हो जाता है ना, वो बताएगा कि अगर आपका की मिसप्लेस्ड है या की का कोई इशू है तो आप सेफ नहीं खोल सकते। लेकिन ब्रांच कैसे रन करना है, कस्टमर से डिपॉजिट लेके करना है या कैसे करना है, दैट इज नॉट स्पेसिफाइड देयर। तो ये आपका कॉमन सेंस है और आपका सोचने का विजनिंग है जो आपको उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सो एज अ ब्रांच हेड, ऑलवेज रिमेन कूल, ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ रेजिंग द प्रॉब्लम, क्रिबिंग एंड टेलिंग अदर्स कि अरे ये प्रॉब्लम हो गया। लुक फॉर सॉल्यूशंस, सीक गाइडेंस wherever you want. Don't hesitate to discuss
विद एक्सपीरियंस्ड पीपल। आपको ये हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि साहब बता देंगे तो मेरी बदनामी हो जाएगी। इसमें बदनामी क्या बात है, ये सिचुएशन किसी के साथ हो सकता है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड ओपनली डिस्कस। आफ्टर दिस डिस्कस, मैं तो हर जगह ये डिस्कस करता था ताकि हमारे जूनियर्स सीख सके कि मेरे साथ क्या हुआ। सो एक लाइफ का इंसिडेंट शेयर किया हूं। उम्मीद है आप सब के लाइफ में इस तरह के इंसिडेंट नहीं आएंगे, लेकिन अगर आएंगे तो मुझे विश्वास है कि आप उसे अपने थिंकिंग प्रोसेस से, अपने नॉलेज से, अपने कम्युनिकेशन स्किल से और अपने लोगों के सहयोग से आप उसको रिजॉल्व कर लेंगे इमीडिएटली। तो आशा है कि आप सबों को ये वीडियो और ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। इससे आपको सीखने का मौका मिलेगा। इस तरह की बहुत सारे समस्याएं आती रहती हैं वर्क लाइफ में, लेकिन अगर आप अपने कॉमन सेंस को, अगर आप अपने गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, कॉमन सेंस पर आपको भरोसा है और आप प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए कोई भी चीज बहुत डिफिकल्ट होगी हैंडल करना। लोगों से कम्युनिकेट करते रहिए, सीखते रहिए, गाइडेंस लेते रहिए। यही मेरा रिक्वेस्ट है और मैं तो आपके लिए वीडियो लेके आता ही रहता हूँ, चाहे वो मोटिवेशनल वीडियो हो या गाइडेंस का, एक्सपीरियंस का कोई स्टोरी शेयर करता रहता हूँ। आप लोगों में से बहुत लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया है, बहुत लोग इसे देखते भी हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। जिन लोगों ने अभी भी नहीं किया है उनसे आग्रह है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छी चीजें जितनी फैलाई जाएं, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इसे जरूर फैलाइए, प्रसारित कीजिए, दूसरों को भी इससे सीखने का मौका मिलेगा। नमस्ते, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए